Good morning, friends. So let us continue our series of tricks and hacks for the CSC prelims examination. Now, next trick is something like this. Look for the similar or similar sounding and associated words. From this, we'll derive the answer. For example, let us see this question number 28 is talking about the Vittal Vidvansak, the first monthly journal to have untouchable people as its target audience was published by. Now look at this word Vittal or Vittal Vidvansak. Now this Vittal is something which is associated or which is similar sounding to Vittal, which is Lord Vittal. Now अगर आपने भक्ति मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो few of the saints such as Namdev, they were the worshipper of Lord Vittal. Lord Vittal is considered an incarnation of Lord Vishnu, and Hindu deity that is predominantly worshipped by in Maharashtra and Karnataka. Now, this Namdev also was a saint from Karnataka. Saint of Maharashtra. Going by this, we have this name that is now this kind of words like this kind of name Walagankar, Tendulkar, Gavaskar, these are associated with Maharashtra. So I would mark this as correct. Again, there's also you could have doubt with भीमराव अंबेडकर, बट अगेन मैंने पहले ही बोला है कि ट्रस्ट योर नॉलेज बेस. आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना पढ़ा है और उन्होंने और सारे जनरल्स लिखे हुए हैं जो हमें याद है, बट ऐसा कुछ हमें सुनने में नहीं आता है. सो दिस लेट्स से इफ इट्स नॉट बीन रेड देन वी वुड अज्यूम दैट ही माइट नॉट हैव रिटन दिस. So going by that, I would say option A is correct. Again, come to the 44th question. It's talking about the Vat Kirutal mentioned in the Sangam poems. Now, if you have studied about Sangam era and Sangam literature and Sangam poems basically are of two types, Aham and Puram. Aham basically is associated with inner or subjective world, such as love, such as emotions, and this Puram is associated with external world and deals with subjects such as courage, valor, heroism, war, etc. Now, if you look at the answer of options, the four options which is been given here: kings employing women bodyguards, learned person assembling in the royal court to discuss the religious and philosophical matters, young girls keeping watch over agriculture fields and driving away birds and animals. Now, look at the fourth option: a king defeated in a battle, committing ritual suicide by starving himself to death. Now, this option is something which is more resonating with Puram, that is courage, valor, or heroism. So, by this logic, I would say option D is correct. Now, look at this 54th question. It's talking about Didwana, Kuchaman, Sargol, and Khatu. Now, ये मुझे पता भी नहीं है. Now, let's see how using this trick or using this hack, how we're gonna reach the answer. So, first of all, see this word Khatu. नाउ दिस खाटू, आपने सभी ने खाटू श्याम का नाम सुना होगा. दिस खाटू श्याम, इनका जो मेन टेम्पल है वो सीकर राजस्थान में आता है. चलिए, अगर ये नहीं पता तो इतना तो पता है राजस्थान में आता है. नाउ यूजिंग द सेम लॉजिक, लेट्स से अगर ये राजस्थान में है तो ग्लेशियर तो हो नहीं सकता है, मैंग्रोव एरिया तो हो नहीं सकता है, कोस्टल रीजन नहीं है राजस्थान में. नाउ हमारे पास बचते हैं रामसार साइट और सलाइन लेक. नाउ अगर इसमें हम देखें तो रामसार साइट हम इतना पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में या फिर अपने इन्वायरमेंट में, तो रामसार साइट्स हमें ऑब्वियसली टिप्स पे पता है. ये रामसार साइट्स है नहीं, तो बचा क्या हमारे पास एक ही ऑप्शन, दैट इज़ द सलाइन लेक्स. एंड ऑब्वियसली राजस्थान में आप देखोगे तो सलाइन लेक्स बहुत ज़्यादा हैं. एंड अगर आप देखोगे जो खाटू श्याम का मंदिर है, अगेन दिस इज़ इन खाटू विलेज. दिस इज़ नेम्ड आफ्टर दिस सलाइन लेक. अगेन talking about the region Dhanyakatak, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangha located. Now Dhanyakatak अगर आप देखोगे, something that is
साउंडिंग विद कर्नाटका और सिमिलर साउंडिंग नेम। अगर आप ये तीनों रीजन देखोगे, ये कहीं क्लोज नहीं है, कहीं क्लोज नहीं है, कहीं क्लोज नहीं है, द वन दैट इज क्लोज टू कर्नाटका एंड दैट रीजन इज आंध्रा, विच इज द राइट आंसर। अगेन let us see this 47th question that's talking about the greased lightning ZL-10। ये देखो इंग्लिश नाम है, ठीक है। नासा कोई भी अगर अपना डेवलपमेंट्स करता है, कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट या कुछ भी अपने मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं, उनका नाम इंग्लिश में रखता है। जापान, नो, इट्स इन जापानीज। चाइना ऑल्सो जापानीज, सॉरी चाइनीज। और इसरो जो रखता है समथिंग लाइक तेजस हो गया, ऐसे जो इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं या फिर और भी जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स हैं, तो हिंदी नाम रखता है। सो गोइंग बाय दैट वी वुड से द ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनके अगर चाइनीज़ के नाम भी देखो ना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट चेंगडू, इनका नाम ही चाइनीज़ रहता है, जापानीज़ का भी। सो आई वुड से दिस इज नासा। नाउ अगेन दिस कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू, नहीं पता है हमको। कलम मतलब आपका होता है पेन, कारी मतलब होता है क्राफ्टमैनशिप, और कलम बेसिकली अगर हम देखेंगे एक ऑप्शन जिसमें होता है दैट इज इन अर्लियर डेज इट्स मेड ऑफ बॉम्बू। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैंडमेड ड्राइंग ऑन बॉम्बू हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कलमकारी का जो एक इनका एक जो स्टाइल होता है दैट इज श्रीकाल हस्ती, दैट यूजेस बॉम्बू पेन आउटलाइन बना के एंड देन दे फिल विथ कलर्स। Again they see M strips. Now strip something that is, हिंदी में बात करें तो कुछ भी, ये कहाँ होते हैं, लाइक दीज आर फाउंड इन द बिग कैट्स। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइगर इस ऑप्शन में है। अगेन अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो मेंटेनेंस है, टाइगर है, तो एम से मेंटेनेंस हो सकता है एंड टी से टाइगर हो सकता है, तो बहुत जो क्लोज ऑप्शन है दैट इज बी। अगेन दिस थर्मल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस, इंग्लिश नाम है, तो मैं क्या करूँगा, जापान और साउथ कोरिया, सॉरी यहाँ पे साउथ कोरिया, ये तो नहीं होगा, इंडिया का नहीं होगा इंडिजिनस, इनका कुछ और होता है जैसे पुष्पक, समथिंग लाइक दैट। सो या तो अमेरिकन एंटी हो सकता है या फिर इजरायली रडार सिस्टम हो सकता है। अगेन अगर आप यहाँ पे वर्ड देखेंगे डिफेंस, सो दिस इज समथिंग दैट इज यूज फॉर डिफेंस। रडार क्या होता है, रडार मॉनिटरिंग के लिए होता है और भी एक्टिविटीज़ में, बट दिस एंटी मिसाइल सिस्टम इज यूज फॉर डिफेंस, दिस एंटी मिसाइल सिस्टम। सो आई वुड से गोइंग बाय दैट लॉजिक ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is all about the tricks and hacks, so we'll continue further. Thank you all.